Shri Arun Sharma, Executive Chairman, the Indian Register of Shipping, Shri Riyad Matthew, Chief Associate Editor, The Week, and Director, Malayalam Manorama Group, industry captains, flag officers from the Indian Armed Forces, distinguished guests, ladies and gentlemen. India, as a peninsular nation, has a coastline to the tune of 11,100 kilometers. And over 90% of our trade by volume takes the route of water. As the English statesman of the 16th century, he was a statesman as well as an explorer, Sir Walter Raleigh once said, and I quote, "Who commands the oceans commands the trade, and who commands the trade commands the riches of the world, and in consequence, the world itself." As a maritime nation, predominantly India is a maritime nation, and in the current VUCA environment where conflicts erupt at the drop of a hat and have the potential to explode and escalate to multidimensional and full-scale wars, these words are very important. India indeed has a very strong maritime legacy, stretching back to the Harappan years, both in maritime trade as well as in design and building of seagoing platforms. The Lothal dry dock facility is a testimony to our capability. Also, the seagoing fleets of the Cholas, Kunyali Marakkar, and Kanoji Angre, and also the shipbuilding facilities that existed in Surat and also along the shores of Hooghly, ensured that the maritime capability was utilized effectively then to boost naval power, trade, and diplomacy. But today, if you take the global fleet share that India holds, we just have about 1.2%. And in shipbuilding globally, our share is even lower. It hovers between 0.06 to 0.07%. So there is an urgent need to ramp up our shipbuilding capability. And the government has already a stated vision in this segment to be among the top 10 shipbuilding nations by 2030 and top 5 by 2047. These targets are definitely ambitious. If you come to Manorama, Shri Arun Sharma, Executive Chairman, Indian Register Society, Shri Babaji Kalyani, Managing Director, Bharat Forge, industry leaders, entrepreneurs, भारत सरकार के अन्य ऑफिशियल्स, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और द वीक द्वारा आयोजित सागर संकल्प मैरीटाइम कॉन्क्लेव फ्रूटफुल हो, इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह मंच म्यूचुअल डिस्कशन का तो अवसर प्रदान करता ही है, साथ ही यह कॉन्क्लेव भारत के मैरीटाइम फ्यूचर की दिशा तय करने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं जीआरएसी और द वीक को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए अपनी तरफ से बधाई देता हूं। साथियों, यह आयोजन बंगाल की धरती पर कलकत्ता में हो रहा है। मैं मानता हूं इस धरती की एक अलग ऊर्जा है। बंगाल की भूमि ने भारत को एक तरफ साहित्य और कला दिया, तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेशनल प्राइड को भी दिशा दी है। एक समय था इतिहास में इस स्थान का अपना एक स्पेशल मैरीटाइम इंपॉर्टेंस था। भारत के ईस्ट से कोई भी सी रूट जब भारत आता था तो कलकत्ता उसका सेंटर हुआ करता था। और हुगली के किनारे स्थित यह शहर
देश की इकोनॉमिक जर्नी का भी एक साक्षी रहा है और नेशनल अवेकनिंग का भी एक प्रमुख केंद्र यह कलकत्ता रहा है। अभी कुछ ही महीने पहले यहीं पर कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित थे, मैं भी स्वयं उपस्थित था। उसमें मैरीटाइम सहित कई स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट्स पर चर्चा भी हुई थी और आज का यह मैरीटाइम कॉन्क्लेव भी उसी कॉन्टिन्यूटी की एक, मैं मानता हूं कि महत्वपूर्ण कड़ी है। और मुझे प्रसन्नता है कि जीआरसी और द वीक मिलकर इस संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का इतिहास यदि हम देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसकी जड़ें, इसकी रूट्स 19वीं सेंचुरी से जुड़ी हुई हैं। वह दौर ऐसा था जब देश के सामने अनेक चैलेंजेस थे। ऐसे समय में जीआरसी जैसी संस्थानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। जीआरसी 1884 में एक छोटे रिवर साइड वर्कशॉप से शुरू हुई थी और आज यह भारत के अग्रणी डिफेंस शिपयार्ड्स में बदल चुकी है। इसने 790 से अधिक वेजल्स, जिसमें कि 110 से अधिक वारशिप्स हैं, उनका निर्माण किया है। जीआरसी की एक्सपर्टीज फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स, एंटी सबमरीन वारफेयर शिप्स एवं लैंडिंग शिप्स बनाने में है। परंतु बड़ी बात यह है कि जीआरसी ने फ्रेंडली फॉरेन नेशंस को भी वारशिप एंड मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स एक्सपोर्ट करके भारत की साख और डिफेंस डिप्लोमेसी को मजबूत करने में भी अपना योगदान दिया है। हाई इंडिजिनाइजेशन लेवल्स, एडवांस्ड इन हाउस डिजाइन कैपेबिलिटी और एमएसएमईज के साथ मजबूत सप्लाई चेन नेटवर्क ने इसे नेशनल मैरीटाइम ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रमुख पिलर बना दिया है। जहां तक द वीक की बात है तो आप जैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने जर्नलिज्म के क्षेत्र में एक नया प्रतिमान स्थापित किया है, एक सीरियस और बैलेंस्ड अप्रोच प्रस्तुत की है। मीडिया केवल सूचना देने का ही माध्यम नहीं होती है, बल्कि मैं मानता हूं वह समाज की समझ को शेप भी देती है। एक तरफ जीआरसी है जो स्टील और मशीनरी से देश की ताकत को साकार रूप देता है और दूसरी तरफ द वीक जैसा मीडिया है जो न्यूज, व्यूज और रिव्यूज से उसी ताकत को जन सामान्य तक पहुंचाने में मदद करता है। साथियों, मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अपनी बात आपके बीच रखना चाहूंगा। जब हम भारत के गौरवशाली इतिहास पर ध्यान देते हैं तो हमें कई सारी बातें मिलती हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले से लेकर मिडिल एजेस तक भारत ग्लोबल ट्रेड का एक प्रमुख सेंटर रहा है और उस समय जब दुनिया के कई हिस्से विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में थे, तब भारत नॉलेज, कॉमर्स और कल्चर तीनों ही क्षेत्रों में लीडिंग रोल निभा रहा था। उस समय भारत के जहाज समुद्री मार्गों के माध्यम से दूर दूर तक यात्रा करते थे। हमारा संपर्क रोमन एम्पायर और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन तक स्थापित था। उस समय श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया तक भारतीय व्यापारियों और समुद्री यात्रियों की एक्टिव प्रेजेंस थी। यह जो बाहरी दुनिया से संपर्क था वह भी केवल ट्रेड तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज का भी एक यह सशक्त माध्यम था। भारत ने स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट किए, लेकिन इसके साथ साथ हमने फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और कल्चरल आइडियाज भी विश्व के साथ शेयर किए हैं। आज भी जब हम साउथ ईस्ट एशिया की ओर देखते हैं तो इस ऐतिहासिक संबंध के अनेक जीवंत उदाहरण हमको दिखाई देते हैं। आप में से अनेक लोग अवगत होंगे कि थाईलैंड की प्राचीन राजधानी अयोध्या का नाम अयोध्या से इंस्पायर्ड रहा है। इंडोनेशिया की नेशनल एयरलाइन का नाम भी गरुड़ है।
जो भारतीय पुराणों की कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है। आप शायद अवगत हों कि अभी हाल ही में वापस आए कौंडिन्य शिप प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत की इसी विरासत को पुनर्जीवित करने का एक प्रेरक प्रयास देश को देखने को मिला है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य प्राचीन भारतीय शिप बिल्डिंग टेक्निक्स को समझना और उन्हें मॉडर्न पर्सपेक्टिव में पुनः स्थापित करना था। इसके तहत स्टिच्ड शिप मेथड के आधार पर एक स्पेशल शिप का निर्माण किया गया, जिसमें लकड़ी के तख्तों को आयरन नेल्स से नहीं बल्कि नारियल की रस्सियों से जोड़ा गया और वुडन प्लैंक्स से सील किया गया। यह वही टेक्नोलॉजी थी जिसका उपयोग हमारे प्राचीन समुद्री यात्रियों द्वारा किया जाता था। इस शिप ने पोरबंदर से ओमान के मस्कट तक लगभग 1500 नॉटिकल माइल्स की सफल यात्रा भी पूरी की है और पूरे देश ने यह अनुभव किया कि कैसे यह टेक्निकल एक्सपेरिमेंट ने अतीत और वर्तमान के बीच एक लिविंग ब्रिज का काम किया है। साथियों, यह हमें याद भी दिलाता है कि इनोवेशन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है और मैरीटाइम एक्सेलेंस हमेशा से हमारी हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ रही है। साथियों, आज जिस तरह से मैरीटाइम डोमेन की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, उसे ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि हम अपने एंशिएंट विजडम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि जो देश अपने इतिहास से इंस्पायर होता है, प्रेरणा लेता है, वही भविष्य को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गढ़ने का काम करता है। आप देखिए कि आज मैरीटाइम डोमेन पहले के कंपैरिजन में काफी बदल चुका है। आज के समय में मैरीटाइम डोमेन केवल ट्रेड रूट्स या नेवल स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह नेशनल रेजिलियंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मेजर फाउंडेशन बन चुका है। बदलती ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के इस दौर में ओशंस एक बार फिर विश्व की पावर बैलेंस के सेंटर में आ गए हैं। ऐसे समय में एक मेजर मैरीटाइम नेशन के रूप में भारत का यह दायित्व है कि वह कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी और क्लियर विजन के साथ लीडरशिप प्रदान करे। आज हम सब एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर तेजी से नई परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। सप्लाई चेन रीअलाइन हो रहे हैं। एनर्जी पाथवेज को लेकर नए इक्वेशंस भी बन रहे हैं और मैरीटाइम डोमेन में गतिविधियां लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। पहले समुद्र को केवल ट्रेड का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि समुद्र स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का भी केंद्र बनता जा रहा है। दुनिया बदल रही है और पुराने नोशंस टूट रहे हैं और यह बात हम पिछले कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं। जो अलग अलग फ्लैश पॉइंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, वे ऊपर ऊपर से भले ही आपस में जुड़े हुए नजर आते हों, हर ज्योग्राफिकल और रीजनल स्थिति की अपनी अलग अलग बैकग्राउंड और अपनी अलग अलग कहानी है। फिर भी अगर गौर से देखें तो एक कॉमन बात हमको दिखाई देती है। आज ग्लोबल लेवल पर हमेशा कुछ नया हो रहा है, एक परिवर्तन चल रहा है। पुराने विचार, पुराने ग्लोबल ऑर्डर, पुरानी बिलीफ्स तेजी से बदल रही हैं और यही वह अनसर्टेनिटीज हैं जिन्हें हमें समझना होगा। और अभी चल रही मिडिल ईस्ट की स्थिति इसका मैं मानता हूं कि एक ज्वलंत उदाहरण है। आज जो वहां हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। आगे चलकर मिडिल ईस्ट में या हमारे पड़ोस में परिस्थितियां किस दिशा में जाएंगी, इस पर अभी कोई कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना कठिन है। यदि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या पूरे पर्शियन गल्फ क्षेत्र को देखें तो यह विश्व की एनर्जी सिक्योरिटी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
जब इस क्षेत्र में डिस्टरबेंस या डिसरप्शन होता है तो उसका सीधा असर ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ता है। यही नहीं, आज हम सप्लाई चेन डिसरप्शन केवल ऊर्जा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देख रहे हैं। इन अनसर्टेनिटीज का सीधा प्रभाव इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर पड़ता है। साथियों, वर्तमान में सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एवं ऐसा प्रतीत होता है कि आगे जाकर ये और डायनेमिक ही होती जाएगी। और आज जिस तरह अलग अलग देश लैंड पर, एयर में, सी में और अब तो स्पेस तक में एक दूसरे को टक्कर ले रहे हैं, वह वास्तव में यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, मैं ऐसा मानता हूं। What I consider as more worrying is the fact that this abnormality is becoming the new normal. इन सभी डायनेमिक फैक्टर्स के साथ आज की दुनिया में एक और महत्वपूर्ण तत्व जुड़ गया है और वह है टेक्नोलॉजिकल डायनेमिज्म। आज जीवन के लगभग हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व परिवर्तन ला रही है। स्वाभाविक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सप्लाई चेन भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हाई इन टेक्नोलॉजीज के साथ तो सप्लाई का मुद्दा और भी गहराई से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल फोन से लेकर हवाई जहाज तक या कोई और हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम हो, इनकी सप्लाई चेन्स लगातार डाइवर्सिफाई और कॉम्प्लेक्स हो रही है। डिफेंस सेक्टर में तो यह टेक्नोलॉजिकल डायनेमिज्म और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आता है। डिफेंस सेक्टर में आज हाई एंड और प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमारी सरकार का शुरू से ही यह मानना रहा है कि इन अनसर्टेनिटीज के दौर में सप्लाई चेन डिसरप्शन से बचने का एक मात्र उपाय है सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। और हमारी आत्मनिर्भरता के विजन की एक प्रमुख धुरी, एक प्रमुख पिलर, वह है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ऐतिहासिक दृष्टि से मित्रों देखें तो भारत के डिफेंस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की प्रायोरिटी रही है। पहले ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी बोर्ड ने डिफेंस प्रोडक्शन में एक बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई है। 4 शिपयार्ड्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने नेशनल सिक्योरिटी में अपना एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। परंतु लगातार परिवर्तनों, जिनमें से कुछ की मैंने अभी चर्चा की है, उनके मद्देनजर और हमारे डिफेंस प्रोडक्शन को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से कई स्ट्रक्चरल और पॉलिसी रिफॉर्म्स को भी लागू किया गया है, जिससे एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी है। अब ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस, बेंचमार्किंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर विशेष बल दिया जा रहा है। और विशेष रूप से शिप बिल्डिंग सेक्टर में यह परिवर्तन साफ देखने को मिलता है। जीआरएसी तथा हमारे और जो प्रमुख डिफेंस शिपयार्ड्स हैं, इन सब पर भी स्पेशल फोकस दिया गया है ताकि हमारा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम मजबूत और फ्यूचरिस्टिक बन सके। इन शिपयार्ड्स को प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी हब्स के रूप में डेवलप करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल शिप डिजाइन टूल्स, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के माध्यम से इन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक ले जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और हम अपने उद्देश्य में कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं, यानी सफल भी हो रहे हैं। और आज जीआरएसी बस शिप्स नहीं बना रहा है, आज जीआरएसी केवल शिप नहीं बना रहा है बल्कि ग्रीन शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक फेरीज, हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम्स और एआई इनेबल्ड डिजाइन
ऑप्टिमाइजेशन जैसे क्षेत्रों में भी लीड रोल निभा रहा है और भविष्य में यह ऑर्गेनाइजेशन और भी प्रोग्रेस करे